Okay, the two sector, three market model shows the role of economy in the market. Just 1 minute, okay. The column is marketing captured. Okay, now it will happen. Okay, we would be talking about the two sector, three market, circular flow of income. Now, the two sector, three market, circular flow of income is about how the or what role does the financial markets play, and how the savings get diverted into the financial markets of a particular country. Just give me 1 minute, okay. I wanted to show you a link. Because it would be much more easier for you to understand it using it. Okay, I was able to find the link. So first and foremost, we will be seeing as to what are the different sectors which are included, and how does the particular aspect function. So what we will be seeing, the first sector that is included in it is the household sector. Household sector is included in it because the household sector is the one which is going to become the net saver of the particular economy. हाउसहोल्ड सेक्टर जो है वो इकोनॉमी का ऐसा हिस्सा है जो कि सेविंग करता है, ओके, इसीलिए हाउसहोल्ड सेक्टर इंक्लूड किया जाता है. देन वी हैव द okay, then we have the business sector. Business sector is the producer of the particular thing, of the products. So sectors included has the first one, that is the household sector, and the second one is the business sector. हाउसहोल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, इन दोनों को हमने कल भी डिटेल में देखा था व्हेन वी वर डूइंग द टू सेक्टर टू इनकम टाइप्स, टू सेक्टर टू मार्केट जब हमने देखा था तब हमने इसको भी देखा था. तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ व्हाट इज़ द हाउसहोल्ड सेक्टर एंड व्हाट इज़ द बिजनेस सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर की सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट दे हैव अनलिमिटेड wants and they try to satisfy these unlimited wants through the means that are available, okay. The means the resources that are available are used in order to satisfy the wants of a particular household sector. Then we have the next one. Then we have the next sector, that is the business sector. Business sectors include the proprietors, the partnerships, the companies and all of those things, okay. Firms यहाँ पे आपके business sector में include होंगे, okay. Proprietors, partnerships, etc. are included in it. They are the one who bring together the resources and undertake the production activities. ये लोग जो है वो capital goods भी खरीदते हैं. They are the ones who buy the capital goods as well. Now there are three different markets which are included in this case. यहाँ पे markets कौन कौन से included है वो हम लोग देखते हैं. The first one, markets included.
The first market that is included is your product market. Then we have the second one, that is the resource market. And the third one that is there is the financial markets. अब ये तीनों मार्केट्स जो है वो कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ ऑफर करते हैं. फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट मार्केट, इन प्रोडक्ट मार्केट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर exchanged. Okay, in case of this particular product market, whatever enters into this market would be considered as the GDP calculation. Okay, यहाँ पे GDP calculation आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हो. येस्टरडे ऑल्सो वी सॉ कि जो हमारा प्रोड्यूसर्स से के पास से द प्रोडक्ट मार्केट में से जो बिजनेस सेक्टर से प्रोडक्ट मार्केट में जा रहा है. Any doubts, beta? Did anyone raise their hand? Okay, I think so. It was done by mistake. So, whatever goods are being supplied from the product market towards the business sector would be included in the product in the GDP calculation. Business sector के पास से जो भी कुछ items product market में जाते हैं उसे हम लोग वहाँ पे GDP के कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं. Here the final goods and services are included. The full name of this market or the full name of the product market can be called as, or the product market can be referred to as, let's write it down, aggregate product market. Aggregate product market. अब ये जो एग्रीगेट प्रोडक्ट मार्केट है वहाँ पे सारी चीज़ें बेची जाएंगी. ओके, वॉट एवर इज बींग प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू बी सोल्ड इन द एग्रीगेट प्रोडक्ट मार्केट. इस एग्रीगेट प्रोडक्ट मार्केट में सब कुछ बेचा जाता है. ओके, वॉट एवर इज बींग प्रोड्यूस्ड. देन कम्स द रिसोर्सेज मार्केट. Resources market is that market wherein the resources are being sought from. Okay, here the factors of production which want to offer services are available. ओके, यहाँ पे वही जो रिसोर्सेस या फिर जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं वो लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. सो दीज इंक्लूड व्हाट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दीज इंक्लूड द रिसोर्सेस ऑफ लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप भी यहाँ पे आपका इंक्लूड किया जाता है. Okay, all of these things play a very important role in order to undertake the production activity. This market can also be known as factors market. Why? Because यहाँ पे factors के resources है, इसीलिए factors available है, इसीलिए इसे हम लोग factors market भी कह सकते हैं. Okay, so प्रोडक्ट मार्केट में प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, फैक्टर्स मार्केट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अपने सर्विसेज देते हैं. સો પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં આપણે જે પણ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એને વેચવામાં આવે છે. વેરાઝ રિસોર્સ માર્કેટમાં આપણે શું કરીએ છીએ, આપણે જે પણ સર્વિસીસ આપવા માંગીએ છીએ, જે પણ ફેક્ટર્સ ઓફ પ્રોડક્શન છે જે છે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ, એ બધા જે પણ સર્વિસીસ આપવા માંગે છે એ ફેક્ટર્સ માર્કેટમાં આપશે તમને. देन कम्स द फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं इन ऑर्डर टू डाइवर्ट द सेविंग्स of a particular sector which is in surplus to the sector which is in deficit. डेफिसिट का मतलब है कमी होना, सरप्लस का मतलब है ज़्यादा होना. डेफिसिट એ અછત છે અને સરપ્લસ જે છે એ વધારો છે. ઓકે, સરપ્લસ એટલે
कि आपके पास रिसोर्सेज जितने चाहिए थे उससे ज़्यादा है। डेफिसिट का ये मतलब है रिसोर्सेज जितने चाहिए उससे हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं, इफेक्टिवली ऐसा एक ब्रिज बनाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स એવું એક બ્રિજનું નિર્માણ કરે છે જ્યાંથી સેવિંગ્સ તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરફ જઈ શકે. Financial markets create a bridge wherein the savings of a particular community or of the particular entity gets diverted towards the investments for the other entities. तो इस बीच में बहुत सारे इंटरमीडियरीज आ जाते हैं. जब आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगे कि कौन कौन से लोग बीच में आके ये इंटरमीडिएशन करवाते हैं, या फिर ये जो चीज़ें हम लोग साथ में इकट्ठा लेके आते हैं वो लोग कौन है जो ऐसी चीज़ें करते हैं. ओके, सो फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूड क्रिएशन ऑफ लीगल क्लेम्स. ओके, फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या किया जाता है, क्रिएशन ऑफ लीगल क्लेम्स. कैसे लीगल क्लेम्स, ये लीगल क्लेम्स जो है वो फिजिकल एसेट्स के क्लेम्स हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल एसेट्स के क्लेम्स हो सकते हैं. हियर लीगल क्लेम्स इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द वंस. ओके, फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द वंस सेविंग टू द वंस who are investing. सेवर्स के पास से इन्वेस्टर के पास पैसे पहुंचाने का काम आपका फाइनेंशियल मार्केट करता है. फाइनेंशियल मार्केट इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर द मार्केट्स विच हेल्प द इन्वेस्टर्स इन ऑर्डर टू डाइवर्ट और इन ऑर्डर टू गेट द फंड्स विच आर रिक्वायर्ड. ओके, इन्वेस्टर्स मतलब हम जैसे लोग. ओके, और जो अदर पार्टीज है जो कि जिसके कंपनीज में हम लोग पैसे डाल रहे हैं वो लोग बोरोवर्स है. ओके, हम जो है वो हमें इन्वेस्टर्स कहा जाता है. हम भी कई बार बोरो करते हैं, इट्स नॉट लाइक वी डोंट बोरो, बट जनरली हाउस होल्ड सेक्टर या इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो नेट सेवर्स होते हैं. हम हमेशा सेविंग के बारे में सोचते हैं कि आगे जाके हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी इसीलिए अभी से इन्वेस्ट कर दो, आगे जाके ये होगा तो इसीलिए इन्वेस्ट कर दो, आगे जाके हमें ये ज़रूरत पड़ेगी तो इसीलिए यहाँ पे पैसे लगा दो. तो दैट्स व्हाट वी डू. बट जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कभी ये नहीं सोचते. इट नोस दैट पीपल आर गोइंग टू सेव एंड इट कैन सीक द लोन्स फ्रॉम देम. सो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो आपको लोन्स, ये लोन चैनल्स, डिफरेंट चैनल से आपके सेविंग्स एज अ हाउस होल्ड हाउ डज इट गेट इन्वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, उसके जरिए आपको ये दिखाता है. Okay, one unrelated point from this lecture, what I want to tell is that there are like I would be saying 10 of you in the class. Okay, आप हो सके तो आपकी एज अभी 18-19 के बीच में है, हो सके तो बिकॉज यू हैव अटेन लीगल एज of undertaking transactions, I would suggest that you start your bank account first. ओके, एक डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए. उस बैंक अकाउंट में आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए. ओके, दिस इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग बिकॉज यू आर एट अ वेरी गुड एज टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. यू आर अबाउट बिलो 20 और जस्ट 20. ओके, अभी आप नियर अबाउट 20 के आसपास हो तो आप इन्वेस्ट करना ज़रूर से शुरू कर दीजिए बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो. ओके, अनरिलेटेड पॉइंट but an important point to be understood because this helps you to understand कि भाई क्यों ज़रूरी है. ओके, वेरी गुड बेटा. ज़ेरोधा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. इट इज़ अ डिस्काउंट ब्रोकर. ज़ेरोधा में या फिर किसी भी डीमैट अकाउंट में आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए. हर महीने 500 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए. ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल रिक्वेस्ट बट इट इज़ गोइंग टू टेक यू अ वेरी लॉन्ग इन अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन. आप अगर देखोगे आप 31 ईयर्स तक आराम से फिर अपनी ज़िंदगी जी सकते हो अगर आपने ये 10 साल में 500 करके इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो. ओके, सो I'll be sharing a video, unrelated thing, but it's an important thing for you people to understand. So it's something that has never been told towards us in schools. Okay,
but it is a very important thing to understand. Okay, that is the power of compounding. Okay, कंपाउंडिंग जैसी और कोई चीज़ नहीं है बेटा. अगर आप अगर देखो तो कंपाउंडिंग आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा. ओके, कहीं ना कहीं से आपको ऐसे पहुंचाएगा कि आप बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार पाओगे अगर आपने ये कुछ चीज़ें अभी शुरुआत कर दी तो. ओके, आई वॉज वेरी लेट इन डूइंग इट. आई स्टार्टेड लाइक 2 months बैक, बट लेट्स सी. ओके, मैं ज़्यादा अमाउंट डाल रही हूँ इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट ऑफ और सीक व्हाट आई हैव लॉस्ट. सो लेट्स सी. ओके, अभी आपके पास टाइम है बेटा. आप 500 रुपये कम से कम एक महीने के इन्वेस्ट करोगे तो आप आसानी से अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार पाओगे. सो फाइनेंशियल मार्केट्स की बात आई है, इसलिए मैंने आपको ये वाली एक चीज़ बताना ज़रूरी समझा है, क्योंकि आपकी एज ऐसी है अभी. यू आर इन अ वेरी गुड एज टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन स्टॉक्स, ओके, मुझे आपके पेरेंट्स से डांट पड़ेगी अगर मैं आपको स्टॉक मार्केट की तरफ ढकेल रही हूँ, तो भी मुझे आपको एक सही राह दिखानी है, आपको ढकेलना है उस तरफ, क्योंकि आगे जाके आप ही के लिए वो बेनिफिट होगा. सो लेट्स सी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्रेजेंटर of finance related topics. His name is Ankur Warikoo. If you want to follow him, you can go to his YouTube channel. Excellent, one of the most excellent YouTube creators which is there. Okay, he gives you excellent financial lessons about what to do in your 20s. Okay, so it's a very good channel for you people, and you people are lucky to have such people to guide you as to how to undertake the investments. I would be sharing few other links as well of his, wherein he is telling us to in 20s how you need to start your investing journey. Okay, so let's see the power of compounding first, and then we can study circular flow of income at any point of time. But ये ज़रूरी है क्योंकि मार्केट अभी अच्छा खासा डिप्स आने वाले हैं मार्केट में. अगर आप एंटर करना चाहो तो अच्छे से एंटर कर सकते हो. I have entered personally during this point of time, and I have benefited very highly due to this. Though I have invested a very about 30 or 40,000 rupees in lump sum at once. आपके पास शायद से उतना कैपेसिटी नहीं है, पर एक शेयर तो आप खरीद ही सकते हैं. And nowadays it is very easy to buy even one share, because I started my investing journey by buying one share and 2 shares and 3 shares. People used to laugh at me कि भाई एक शेयर से क्या होता है, but that's how you start. Okay, so let's see the power of compounding first. I'll reduce the playback speed to 1.25.